Good morning, everybody. So today we have Dr. Nikhil Gupta with us. I welcome Dr. Nikhil Gupta, who is a rheumatologist with Max Hospital, Delhi, and he has been treating scleroderma patients. So welcome, sir, to this forum. Thank you. I have been privileged to come to this forum, and I am amazed by the efforts the patients of scleroderma have made, and they are making continuous effort. Even I can see the patient is on oxygen and still making such an effort for awareness and for clearing doubts of many patients of scleroderma. I think this is a very, very good initiative, and I am glad that patients themselves are doing, and I would be very happy to help each and every patient through this medium, whatever I can do for them. Thank you so much, sir, for all the kind words and for your effort and time today, sir. We hope that we'll continue to have a longer interactions with you going forward. Definitely. Right, sir. So in today's session, Dr. Gupta will answer our queries about medicines in scleroderma. So there are a lot of myths which are going around, what medicine to take, what medicine not to take. And if there are certain medicines which are prescribed, we are always afraid of, a lot of side effects and other things. So, let's start with question one. So, our patient's first concern is always about steroids because a lot of autoimmune patients, scleroderma patients are prescribed steroids in certain conditions. So, sir, how important are steroids in the treatment of scleroderma? Scleroderma being an autoimmune disease, it's an inflammatory disease. So we need anti-inflammatory medications. So anti-inflammatory medications, steroids are the most potent anti-inflammatory medications available on earth at the moment. Okay, so steroids are the main treatment options which would work initially for a patient of scleroderma, but definitely they are associated with side effects, so we have to limit its use. So for that, we introduce side by side some steroid sparing agents, depending on the organ involved. If lung, kidney, liver, or any major organ involvement is there in patients of scleroderma, we side by side include either mycophenolate mofetil, cyclophosphamide, rituximab, azathioprine as steroid sparing agent, so that we can taper these steroids fast and keep a patient on a minimal possible dose if required, or try to taper them off depending on individual variation. जैसे patient को जितना जल्दी आराम आ जाएगा, हम उतनी जल्दी steroids को taper करके, और जो बाकी मेडिसिन है steroid sparing मेडिसिन, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं, जिससे कि steroids का साइड इफेक्ट कम से कम रहे और पेशेंट को रिस्पॉन्स भी सबसे जल्दी आए. क्योंकि स्टीरॉइड्स सबसे पहले काम करना शुरू करते हैं, माइकोफिनोलेट, मोफेटिल, एजाथायोप्रिन, ये थोड़ा टाइम लेते हैं काम करने में. इनको 2 से 3 महीने लग जाते हैं एक्शन इनका स्टार्ट होने में. तो इसलिए हमें इनिशियली थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन की जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है या क्या ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा सा हाई डोज स्टीरॉइड या लो डोज स्टीरॉइड उस हिसाब से देना पड़ता है. उसको हम ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी टेपर करें, और पेशेंट को कम से कम डोज या ना के बराबर डोज या बिल्कुल बंद हो सकता है तो हम वो ट्राई करते हैं. बात रही साइड इफेक्ट्स की. साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो साइड इफेक्ट हो सकते हैं स्टीरॉइड्स के. शॉर्ट टर्म में जनरली पेशेंट्स को वेट गेन का खतरा रहता है, थोड़ा सा वेट बढ़ता है, भूख बढ़ती है, थोड़ा सा इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है. लॉन्ग टर्म में थोड़ा बोन वीकनेस का खतरा बढ़ता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, शुगर का खतरा बढ़ जाता है, या फिर पेशेंट को ऑलरेडी शुगर है तो थोड़ा सा वो रेज हो सकता है. कुछ पेशेंट्स को कैटरैक्ट का खतरा बढ़ जाता है, वो बीमारी से भी बढ़ता है और इवन इससे स्टीरॉइड से भी बढ़ता है. बट स्टीरॉइड्स क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट है डिजीज को ट्रीट करने में, हम उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते. तो उसको हमें काउंटर करने के लिए काफ़ी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं. जैसे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है तो हमें पहले पेशेंट को वैक्सीनेशन देना पड़ता है.
इन्फेक्शन का खतरा स्क्लेरोडर्मा जब एक्टिव होती है तो सबसे ज्यादा बीमारी से है। स्टीरॉयड्स या मेडिसिन उसका बीमारी से जो खतरा होता है उसको कम कर देती हैं इन्फेक्शन का, बट बीमारी का जो दवाई से खतरा रह जाता है उससे थोड़ा सा खतरा रहता है। उसको हम पहले वैक्सीनेट करते हैं पेशेंट्स को जनरली, जिससे कि वो खतरा कम से कम रहे, ना के बराबर रहे। ऐसे ही जैसे हड्डी कमजोर होने का खतरा रहता है तो हम साथ में कैल्शियम और एलेंड्रोनेट बिसफॉस्फोनेट जो होता है उससे उसको हम सप्लीमेंट करते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट करते हैं, जिससे कि ये खतरा कम से कम हो जाए। पेशेंट को भी काफी हम काउंसिल करते हैं कि भाई वो मीठा वगैरह ना खाए, तला हुआ चीज ना खाए, ज्यादा फ्रूट सैलेड पे ध्यान दे, अपना डाइट कम करे जिससे उसका वेट गेन ना हो। ऐसे काफी चीजें हमें काउंसिल करना पड़ता है। शुगर को मॉनिटरिंग करना पड़ता है, शुगर अगर बढ़ रहा है तो शुगर की मेडिसिन बढ़ानी पड़ती है। तो हमें काफी चीजें का ध्यान रखना पड़ता है, और इसलिए अब पेशेंट की काउंसलिंग इसमें बहुत जरूरी है कि आपको ये सब चीजें खतरे हो सकते हैं तो आपको ये रिस्क का कैसे ध्यान रखना है। तो इसमें पेशेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है। खाली डॉक्टर अपने आप पेशेंट को एडवाइस कर सकता है, बट उनको पेशेंट को भी अपना ध्यान रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डॉक्टर का एडवाइस देना इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली स्टीरॉयड एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसके बिना आपकी स्क्लेरोडर्मा कंट्रोल डेफिनेटली नहीं हो सकती, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है और स्क्लेरोडर्मा एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। पर धीरे धीरे हम उसको जितना जल्दी पॉसिबल होता है हम उसको टेपर या कम से कम डोज में ले आते हैं। राइट सर, आई थिंक इस आंसर के बाद बहुत सारे मिथ्स जो स्पेशली स्टेरॉइड्स के अराउंड है वो काफ़ी क्लियर आउट हो जाएंगे। एंड यस सर यस आई थिंक दिस ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि एक पेशेंट के साथ अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से ही मेडिसिन टेपर की जाती होगी। एंड वन डेफिनेटली साइज डज नॉट फिट ऑल इन दिस केस। डेफिनेटली ये स्पेशली रूमेटोलॉजिकल या ऑटोइम्यून डिजीज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक पेशेंट का जो प्रेजेंटेशन है, बीमारी कैसे पता लगी। जैसे स्क्लेरोडर्मा काफी लोगों को लंग से स्टार्ट हो जाती है, ज्यादातर लोगों को हाथ में रेनॉल्ड फिनोमिना जो होता है, सर्दी या ठंडे पानी में हाथ डालने में लाल नीला सफेद हो जाता है, जनरली उससे स्टार्ट होती है। बट कई लोगों को स्किन मैनिफेस्टेशन होती है। तो ये डिजीजेस सबके लिए मैनिफेस्टेशन भी अलग है, और सब पेशेंट एक ही दवाई पे रिस्पॉन्स नहीं करते। कुछ लोगों को एमएमएफ सेकेंड लाइन एजेंट यूज करना पड़ता है, स्टीरॉयड स्पेयरिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, कई लोगों को इवन रिटुक्सीमैब यूज करना पड़ता है जो इंजेक्टेबल मेडिसिन है, या फिर साइक्लोफॉस्फेमाइड यूज करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन उनकी कितनी एग्रेसिव डिजीज है ना, कितनी माइल्ड डिजीज है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए सबका इंडिविजुअल वेरिएशन है, इवन दवाइयों का रिस्पॉन्स भी और डिजीज का प्रेजेंटेशन भी। ये पेशेंट को जानना बहुत जरूरी है कि इसमें रूमेटोलॉजी या मेडिकल फील्ड में 1+1 2 कभी नहीं होता है। तो एक पेशेंट को जो दवाई सूट कर रही है दूसरे को शायद वो सूट ना करे, तो हमें इसलिए मॉनिटर करके चेंज करना पड़ता है। और ये सब चीजें तभी पता चलती हैं जब पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद। हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पेशेंट किस दवाई से रिस्पॉन्ड करेगा। राइट सर, आई थिंक इट आंसर्स अनदर क्वेश्चन फॉर अस, जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि मेरे को एक और पेशेंट मिला था, उसको तो डॉक्टर ने कोई और दवाई दी है, मुझे कोई और दवाई दी है, या उसकी दवाई कम है मेरी दवाई ज़्यादा क्यों है। तो आई हाँ गेस जी, इससे वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी हमारी कि हर पेशेंट बहुत डिफरेंट होता है और सबकी मेडिसिन डिफरेंट होती है। राइट सर, ओके सर, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Does having immunosuppressing medicine means my immunity is compromised always? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बेसिकली जब बीमारी शुरू होती है, जो सिम्टम्स आते हैं बीमारी के, उससे पहले ही पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बीमारी से। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी आंसर किया, बीमारी की वजह से इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है।
जब बीमारी एक्टिव है वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है पेशेंट के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इन्फेक्शन का उस टाइम पे होता है। और इन्फेक्शन इस बीमारियों में सबसे कॉमन कॉज है ऑलमोस्ट की, जिसकी वजह से डेथ का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन भी इतना सीवियर होता है इन बीमारियों में, क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी या लड़ने की क्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है बीमारी के कारण। तो काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ये बीमारी के लक्षण आने से पहले ही बार बार इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी ऑल्टर्ड हो जाती है इन बीमारियों में। तो सबसे पहला मैनिफेस्टेशन काफी पेशेंट्स का इम्यूनिटी पे ही आता है, असर आता है, उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते हैं या निमोनिया होता है, या और ऐसे कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो थोड़ा सा होते ही पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, उसको हम सेप्सिस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो इस टाइप का खतरा बीमारी से सबसे ज्यादा होता है। अब दूसरी बात रही इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन, जैसा कि आपने नाम ही है इम्यूनो सप्रेशन, क्योंकि इस बीमारी में ऑल्टर्ड इम्यूनिटी को हमें ठीक करना पड़ता है। तो डेफिनेटली बीमार दवाइयों से भी रिस्क इन्फेक्शन का या इम्यूनिटी कम होती है, उससे भी उसका खतरा बढ़ जाता है इन्फेक्शन होने का। बट जब बीमारी एक्टिव है और उसको आप कंपैरिजन करें कि दवाइयों से, तो वो खतरा रिलेटिवली कम होता है। दवाइयों से इन्फेक्शन का खतरा बीमारी के मुकाबले कम खतरा है दवाइयों से, एज कंपेयर टू बीमारी से जो इन्फेक्शन का खतरा है। और बीमारी तो डेफिनेटली जैसे आप काफी पेशेंट्स को ये डर लगा रहता है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट आपको उल्टे वे में सोचना पड़ेगा कि जैसे बीमारी है वो तो ऑलरेडी बॉडी में है, अगर आप उसके ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो बीमारी का साइड इफेक्ट तो 100% बॉडी पे ऑलरेडी हो रहा है और वो बढ़ता जाएगा। तो दवाइयों का जो साइड इफेक्ट का खतरा है वो कम पेशेंट्स में होता है बहुत। कई जो माइनर साइड इफेक्ट हैं वो 100 में से 2-3 पेशेंट 4 पेशेंट को होते हैं। जो मेजर साइड इफेक्ट हैं वो 1000-10,000 में से एक पेशेंट को होते हैं। तो हमें काफी सारे ब्लड टेस्ट हैं जो मॉनिटर करते रहते हैं, हम 2 महीने में 3 महीने में रूटीन टेस्टिंग करते हैं। इन्फेक्शन जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम पहले कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को वैक्सीनेशन लगे, जिससे कि बीमारी से उनको इन्फेक्शन का खतरा कम हो और साथ में जो दवाई चलेंगी उससे भी उनको खतरा कम बना रहे। और जितना आपकी बीमारी कंट्रोल रहेगी उतना ही आपका खतरा इन्फेक्शन होने का कम हो जाता है। और विद टाइम जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम स्टीरॉयड्स को जितना जल्दी हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का स्टीरॉयड टेपर करें, कम से कम डोज पे मेंटेन करें, या अगर पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम ऑफ भी कर देते हैं पेशेंट्स के स्टीरॉयड। तो डेफिनेटली इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन से भी खतरा बढ़ता है इन्फेक्शन का, बट ये खतरा बीमारी के इन्फेक्शन के खतरे से कम है। राइट सर, आई थिंक सर या आपकी इस आंसर से एक हमारा और इम्पोर्टेंट चीज़ सॉल्व हो गया, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हम ये जो हर 2 महीने या 3 महीने में ब्लड टेस्ट कराते हैं या कोई और स्कैनिंग कराते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड क्लू इन केस अगर कोई इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है या अगर कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। So it serves as a dual purpose, I guess, या because lot of patients को complain हो जाती है कि मैं तो जब भी जाता हूँ अपॉइंटमेंट के लिए मुझे बोला जाता है कि आप अपने ब्लड टेस्ट करा लीजिए, and I don't know why I spend so much of money every time. So I guess this answers that vital question कि हमें शायद एज अ पेशेंट समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एज अ डॉक्टर नोज कि हमें उससे इन्फेक्शन चेक करना है और हमें ये देखना है कि कहीं साइड इफेक्ट्स या डिजीज प्रोग्रेस तो नहीं हो रहे हैं। डेफिनेटली Right, sir. Thank you so much, because what I'm realizing is if we are having one question, your answer is actually simplifying a lot of other questions for us. Right, sir. Okay, sir. Next question is, again, what are the side effects of MMF in the long run? When I'm saying MMF, it can be, any other immunosuppressant that other people are taking. Yeah.
इम्यूनोसप्रेसेंट्स स्पेशली जैसे आपने एमएमएफ का जिक्र किया, एमएमएफ एक आई वुड से वन ऑफ द सेफेस्ट इम्यूनोसप्रेसेंट है। बाकी मेडिसिन के मुकाबले काफी सेफ इम्यूनोसप्रेसेंट है। या उसका शॉर्ट टर्म में जनरली जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है कि पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, उसको काफी बार डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक ये कंप्लेन करता है पेशेंट। तो उसका भी एक ऑल्टरनेटिव है, उसमें हम सोडियम सॉल्ट देते हैं एमएमएफ का, एमएमएफ एस करके या माइकोफिनोलेट सोडियम करके मेडिसिन होता है। तो उस जो पेशेंट एमएमएफ प्लेन जो होता है वो टॉलरेट नहीं करते, हम उसको एमएमएफ एस देते हैं। जनरली उससे साइड इफेक्ट ये खत्म हो जाते हैं। स्टिल पेशेंट अगर टॉलरेट नहीं करता है तो हम उसको दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट पे जैसे कि एजाथायोप्रिन हो गया या रिटुक्सीमैब हो गया, साइक्लोफॉस्फेमाइड हो गया, हम इनको फिर इन पेशेंट्स को उस पर शिफ्ट करते हैं अगर वो टॉलरेट नहीं होता है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स के आपने मेंशन करे कि क्या हो सकते हैं। एज पहले भी जो डिस्कस हुआ, इन्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट होता है जो हम वैक्सीनेशन देके पहले उसको काउंटर करते हैं। पहले वैक्सीनेशन दे देते हैं पेशेंट को तो इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। अदर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जनरली कई बार ब्लीडिंग का खतरा होता है, वो भी बहुत रेयर है। मैंने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा है जिसको इम्यूनोसप्रेसेंट से ब्लीडिंग हुआ हो। कई बार टीएलसी कम हो जाता है, वो भी अगेन बहुत रेयर साइड इफेक्ट है। टीएलसी लेवल बॉडी के कम हो जाते हैं, वो जैसे मैंने कहा हम 3 महीने में इसलिए ही टेस्ट करते हैं कि देखने के लिए कि दवाई से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा या बीमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो अगर हमें उसमें पता चलता है कि टीएलसी कम है और हमें बाकी टेस्ट करके कि ये और किसी वजह से नहीं हुआ है, ड्रग के कारण ही है, तो हम उसको ड्रग की डोज कम कर देते हैं या फिर हम दवाई को बदल देते हैं। तो उससे वो खतरा भी काउंटर हो जाता है। एक बहुत ही जो रेयर साइड इफेक्ट है वो एक कैंसर का, ब्लड कैंसर का हल्का सा खतरा हो सकता है इन दवाइयों से। बट वो खतरा बीमारी से सबसे ज्यादा होता है। स्क्लेरोडर्मा बीमारी में काफी तरह के कैंसर्स का खतरा हो जाता है, जो कि ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है उस खतरे को ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देती है। जो बीमारी की वजह से कैंसर का खतरा है, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन से वो उसका चांस बहुत कम हो जाता है। बट जो थोड़ा सा हल्का सा खतरा, ना के बराबर जो खतरा है वो दवाइयों से बढ़ जाता है। बट वो भी बहुत बहुत ही रेयर है। मतलब आई वुड से कि मेरी अभी तक की प्रैक्टिस में मैंने ऐसा कोई भी पेशेंट एनकाउंटर नहीं किया है। इन सबको मॉनिटर करने के लिए, साइड इफेक्ट मॉनिटर करने के लिए पेशेंट को रेगुलर विजिट करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी पेशेंट मैं देखता हूँ कि वो अपनी अपॉइंटमेंट स्किप करते हैं। रेगुलर जब डॉक्टर्स बुलाते हैं वो टाइम पे नहीं पहुंचते। तो उसमें उन पेशेंट्स को जनरली मैंने देखा है कि उनको साइड इफेक्ट का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। वो जो अपने आप सेल्फ मेडिकेट करते हैं या फिर उन पेशेंट्स में बीमारी भी अच्छे से कंट्रोल नहीं होती है और उनको बार बार हमें मेडिसिन या स्टीरॉयड बढ़ाना पड़ता है, या जैसे रिटुक्सीमैब वगैरह जो कॉस्टली मेडिसिन है कई बार उसका यूज करना पड़ता है। तो एक आपके फोरम से मैं ये पेशेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगा, आप अपने डॉक्टर से रेगुलर टाइमली मिलें। वो क्योंकि हर पेशेंट का उसने इंडिविजुअली प्लान कुछ सोचा होता है कि अगली विजिट पे मुझे ये चेंजेस करने हैं रिस्पॉन्स के हिसाब से मेडिसिन पे। तो बट पेशेंट्स बहुत बार अपॉइंटमेंट मिस करता है, फिर कभी 6 महीने में दिखाता है, 1 साल में दिखाता है। वो पेशेंट्स के लिए बहुत गलत है, बीमारी के लिए बहुत गलत है, उसमें मेडिसिन का साइड इफेक्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। राइट सर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई गेस ये पॉइंट हम यहाँ से डिराइव करके अपने कम्युनिटी में वी विल डेफिनेटली स्प्रेड इट। तो हम लोग 1-on-1 काउंसलिंग करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ एम्फसाइज करेंगे। राइट सर। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन सर, जब हम बात कर रहे हैं कि मेडिसिन, इम्यूनोसप्रेसेंट्स और साइड इफेक्ट्स की, like a lot of people say कि I'm taking immunosuppressants, I'm taking acid-eating tablets, I'm taking a lot of other tablets also. तो
इतनी सारी मेडिसिन लेने के बाद मेरे लिवर और किडनी में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा. इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑल द मेडिसिन. Yeah. साइड इफेक्ट्स जनरली अगेन स्क्लेरोडर्मा से लिवर और किडनी इन्वॉल्वमेंट का खतरा भी बढ़ जाता है. तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे मेडिसिन और स्क्लेरोडर्मा को, तो स्क्लेरोडर्मा से जो खतरा है लिवर और किडनी इन्वॉल्वमेंट होने का, वो मेडिसिन के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा है. तो रादर आपने कुछ नोट भी किया होगा, जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी लिवर और किडनी इन्वॉल्व हैं स्क्लेरोडर्मा पेशेंट्स में, ये स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन जो हम यूज करते हैं इसमें, वो उसको ठीक कर देती है, लिवर को नॉर्मलाइज कर देती है, किडनी को भी अगर डैमेज नहीं हुआ है तो वो नॉर्मलाइज कर देती है. तो इससे यही दर्शाता है कि ये मेडिसिन रादर किडनी और लिवर पे साइड इफेक्ट ना करके उनको प्रोटेक्ट करती हैं. तो क्योंकि जो ऑलरेडी डैमेज ऑर्गन थे स्क्लेरोडर्मा पेशेंट्स के, तो वो बेटर हो जाते हैं इन मेडिसिन को यूज करने से. तो इट्स दी अदर वे राउंड, इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन से लिवर किडनी का खतरा नहीं होता, रादर वो उनको बचाती है. बट डेफिनेटली जो पेन किलर मेडिसिन हैं, जो एनसेड्स बोलते हैं हमको, या लोकल लैंग्वेज में पेन किलर मेडिसिन बोलते हैं, उनसे लिवर किडनी हार्ट अटैक तीनों का खतरा बढ़ता है. तो हम उनको कम से कम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, बहुत जुडिशियल यूज के लिए बोलते हैं, क्योंकि स्क्लेरोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जो कि मल्टी सिस्टम ऑर्गन्स को, सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है. तो हम इसका यूज बहुत ना के बराबर करने को बोलते हैं पेशेंट्स को, कि जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेटर है. तो पेन किलर मेडिसिन या ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको पेशेंट्स को जनरली अपने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही लेनी चाहिए, रादर की अपने आप ही लेनी चाहिए. एक नॉर्मल इंसान जो पेन किलर मेडिसिन यूज करता है, उसके मुकाबले स्क्लेरोडर्मा पेशेंट्स को हम फ्रीली एडवाइस नहीं करते हैं, बहुत ही ना के बराबर, डिपेंडिंग ऑन उसके क्या ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, बीमारी किस लेवल पे है, क्योंकि उससे पेशेंट्स को एसिड रिफ्लक्स भी बहुत बढ़ता है, और जनरली स्क्लेरोडर्मा वाले पेशेंट्स को एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है. So I guess you have already answered our next question, where patients complain is, or the question is it okay to take painkillers too often if one is suffering from recurring joint pains, muscle pains, or any other kind of pains? So I guess आपने वो पहले ही आंसर कर दिया है हमारे लिए. Right. And there is another question which is related to this, कि while taking over the counter medicines, like अगर मेरे को कोई फीवर हो गया है, या हेडेक है, या कुछ पेन है, localized pain, I am taking some over the counter medicines, is it advised to continue with my regular medicines or stop them for a while? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कुछ डेंजर साइंस होते हैं स्क्लेरोडर्मा पेशेंट्स में, या रेड फ्लैग साइंस होते हैं, उसमें फीवर एक रेड फ्लैग साइन है. तो अगर किसी पेशेंट को फीवर हुआ है, बेशक से चाहे खांसी जुकाम हुआ है, मैं यही एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट आप अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें उसके बारे में, रादर देन अपने आप पैरासीटामोल या कोई मेडिसिन ओवर द काउंटर खुद यूज करें. क्योंकि फीवर एक डेंजर साइन है स्क्लेरोडर्मा में, उसमें काफी मेडिसिन ऑल्टर करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि निमोनिया का खतरा भी बहुत हाई रहता है, यूरिन इन्फेक्शन का खतरा हाई रहता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन का पेशेंट्स को खतरा रहता है, और फीवर उनमें से किसी का भी एक साइन हो सकता है. तो अगर किसी पेशेंट को सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें बहुत सारी मेडिसिन ऑल्टर करनी पड़ती हैं. हम स्क्लेरोडर्मा की मेडिसिन काफ़ी सारी वो कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली अर्जेंटली, इट्स एन, आई वुड से इट्स इमरजेंसी, कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जल्दी से जल्दी करना चाहिए. सेकेंड इज कि पेन जैसे हेडेक है, हेडेक अगर माइल्ड है, आपको पैरासीटामोल यूज करके आपको रिलीफ आ रहा है, एक दो मेडिसिन से रिलीफ आ गया, दैट्स गुड. अगर उसके बियॉन्ड परसिस्ट करता है, एक या दो दिन के बियॉन्ड परसिस्ट कर रहा है,
या फिर बहुत ही सीवियर हेडेक है जो कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उस टाइम भी अपने डॉक्टर के पास जरूर विजिट करना है। या फिर आप अपने डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। या फिर आपके डॉक्टर, जैसे रूमेटोलॉजिस्ट बहुत कम है, काफ़ी पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, अगर वहाँ पे रूमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो एक आप फिजिशियन के पास जाके अर्जेंटली बता सकते हैं कि मुझे ये स्क्लेरोडर्मा की बीमारी है और मुझे फीवर आ गया है या हेडेक हो गया है। तो आप अपने डॉक्टर को बोल सकते हैं कि वो आपके रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें कि कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं। तो एक कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इवन डॉक्टर्स के बीच, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट के पास, रूमेटोलॉजी के पास वैसे ही इतने ज़्यादा पेशेंट लोड होता है, काफ़ी बार वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। बीइंग रूमेटोलॉजिस्ट आर वेरी फ्यू इन दी कंट्रीज, इन आवर कंट्री, और जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो एटलीस्ट कोलैबोरेशन करके अपने डॉक्टर को किसी ना किसी को वहाँ पे लोकली फिजिशियन को दिखा के आप मेडिसिन चेंज करवा सकते हैं। राइट सर, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि हम लोग कई बार फीवर या हेडेक को बहुत लाइटली ले लेते हैं एंड वी वेट फॉर अ डे यूजुअली टू गेट बैक टू आवर डॉक्टर। Right, sir. So do these medicines for scleroderma, they work on the symptoms or also help in slowing down the effect of scleroderma in our body? Like हमारी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है बॉडी में, तो मेडिसिन क्या इन चीज़ों को भी स्लो डाउन करती हैं या कुछ रिकवर करती हैं? एक्चुअली इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन का दोनों ही इफेक्ट है, सिम्टोमेटिक रिलीफ एज वेल एज डिजीज मॉडिफाइंग। तो इनको डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स भी बोलते हैं, बट स्पेशली स्किन पे जो इफेक्ट है वो बहुत स्लोली आता है इन मेडिसिन का। तो काफी बार पेशेंट को इवन अप्रिशिएट भी नहीं होता है कि मेरे को 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, स्किन की मेरे को टाइटनिंग उतनी ही है, क्योंकि स्किन की जो टाइटनिंग है वो बहुत स्लोली स्लोली इम्प्रूव करती है। बट डेफिनेटली जैसे लंग इन्वॉल्वमेंट हो गया या किडनी या कोई भी मेजर इन्वॉल्वमेंट हो गया, उधर एकदम से इम्प्रूवमेंट आता है, पेशेंट्स को बहुत ही अर्ली रिस्पॉन्स आता है। तो उधर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी बहुत अर्ली पेशेंट को मिलता है, और इवन डिजीज मॉडिफिकेशन, जो कि डिजीज को बढ़ने से रोकती है ये बीमारी, ये दवाई बेसिकली दोनों पर्पस सॉल्व करती हैं, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट और डिजीज स्क्लेरोडर्मा को बढ़ने से रोकना। Right, sir. Right. So, there's a question which is always asked कि होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट्स ट्राई कर सकते हैं क्या? Do these things go hand in hand with the allopathic treatment of scleroderma? देखो, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है मेरे लिए आंसर करना, बिकॉज हम जनरली एक ही सिस्टम के डॉक्टर होते हैं, आइदर एलोपैथिक, आइदर होम्योपैथिक, आइदर आयुर्वेदिक। तो कॉम्बिनेशन जो थेरेपी है, एक्चुअली साइंटिफिकली अभी तक स्टडीज नहीं हुई हैं ऐसी कि कॉम्बिनेशन थेरेपी जैसे आयुर्वेदिक या होम्योपैथी कॉम्बाइन करें, या आयुर्वेदिक एलोपैथी कॉम्बाइन करें, या होम्योपैथी और एलोपैथी कॉम्बाइन करें। ऐसी स्टडीज अभी तक अवेलेबल है नहीं, और ना ही इनका साइंटिफिक कोई डाटा है कि आप कॉम्बिनेशन किया, क्या पता कि उन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन साइड इफेक्ट बढ़ा दे मेडिसिन को, या क्या पता कुछ ऐसे इंटरेक्शन हो बॉडी में जिससे बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट हो। तो बेसिकली मैं इसलिए ही क्योंकि साइंटिफिक कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये ही कहना चाहूँगा कि आप मिक्सिंग ऑफ मेडिसिन या मिक्सिंग ऑफ टू सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को अवॉइड करें, एक ही सिस्टम को फॉलो करें, आइदर होम्योपैथी, आइदर आयुर्वेदिक, आइदर एलोपैथी। Right, sir. So, how important are supplements, multivitamins, or for that matter, flu shots with my regular medicines? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स ने हमें फ्लू शॉट लेने को कहा है, लेकिन हम तो इतना बीमार पड़ते भी नहीं है सीजन चेंज होने पे, या मेरे डॉक्टर ने मुझे सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स दिए हैं, मुझे नहीं लगता मुझे उनकी ज़रूरत है।
So देखो इसका how do we handle this? इसका एक आंसर तो आई थिंक मैं काफी क्लियर हो गया होगा पहले ही जो डिस्कशन हुआ हमारा, Right, क्योंकि sir. इन्फेक्शन का रिस्क स्क्लेरोडर्मा में बहुत ज्यादा हाई होता है, डिजीज के कारण भी और मेडिसिन के कारण भी। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जो रिकमेंडेड वैक्सीनेशन है वो रेगुलरली पेशेंट ले। उनको रादर मेडिसिन शुरू करने से पहले ही हम रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट वैक्सीनेट हो जाओ, जिससे आपका इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए। फ्लू वैक्सीन हर साल क्योंकि नया स्ट्रेन आता है जनरली, फ्लू वायरस जो वायरस होता है जो फ्लू करता है उसका इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो हर साल अपना स्ट्रेन बदलता रहता है, तो इसलिए हर साल उसकी नई वैक्सीन डेवलप होती है और वो उसका प्रोटेक्शन जनरली एक साल के लिए रहता है, क्योंकि अगले साल वो नया स्ट्रेन म्यूटेट होकर नया स्ट्रेन आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं, रिकमेंडेशन जो कहती है कि हर साल आपको फ्लू शॉट्स लगवाने चाहिए। इवन नॉट ओनली स्क्लेरोडर्मा, काफी और पेशेंट जो जिनको साथ में डायबिटीज है, एस्थमा है, मल्टीपल जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, उन पेशेंट्स में भी ये बेनिफिट देता है इन्फेक्शन से। उन बीमारियों में जो खतरा बढ़ता है उससे भी इन्फेक्शन का खतरा वैक्सीनेशन से काफी कम हो जाता है। जैसे हम बचपन में वैक्सीन लगवाते हैं बच्चों को अपने, ऐसे ही सेम वे एडल्ट्स के भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। 65 के बाद तो अगर किसी को बीमारी नहीं है तो अगेन कुछ वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो लगना चाहिए। और उसके बीच में जो एज है 65 और जो 5 इयर्स के बीच में एज है, इसमें भी अगर कुछ बीमारियां हैं पेशेंट्स को, जिसमें से ऑटोइम्यून बीमारी, स्क्लेरोडर्मा, एसएलई, आर्थराइटिस, इन सब में रिकमेंडेड है कि वैक्सीनेशन आप रेगुलरली लगाएं, जिससे आपका इन्फेक्शन का खतरा कम से कम हो जाए। सेकंड Right. क्वेश्चन जो रहा सप्लीमेंट्स का, सप्लीमेंट्स डेफिनेटली कुछ सप्लीमेंट्स तो बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया स्टीरॉयड्स के साइड इफेक्ट बचाने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी बहुत जरूरी है। बीमारी और ये जो स्क्लेरोडर्मा बीमारी है उसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है, बीमारी की वजह से बोन वीक हो जाती है, अगेन उसके लिए भी आपको कैल्शियम, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट रहती है। वो रेगुलरली ही आपको लेना होता है, जो आपको एज योर डॉक्टर एडवाइजेस। देन सेकंड इज कि स्क्लेरोडर्मा पेशेंट्स में काफी बार इंटेस्टाइन या स्टमक इन्वॉल्वमेंट होता है। स्टमक इन्वॉल्वमेंट जो होता है उधर उसमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है न्यूट्रिशन का, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। काफी बार आपने देखा होगा कि पेशेंट्स को हीमोग्लोबिन कम रहता है स्क्लेरोडर्मा पेशेंट्स का, वो इसलिए ही कम रहता है कि आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और काफी पेशेंट्स को मुंह में छाले भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो कई बार डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इसमें हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो काफी बार एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो हमें ड्रिप से भी आयरन चढ़ाना पड़ता है इन पेशेंट्स को। विटामिन बी 12 के काफी बार इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं अगर उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कुछ सप्लीमेंट्स तो डेफिनेटली रेगुलर रिक्वायरमेंट है, कुछ सप्लीमेंट्स को हम इफ रिक्वायर्ड दे सकते हैं। तो इनमें डिपेंडिंग ऑन की क्या डेफिशिएंसीज हैं उस हिसाब से हमें पेशेंट का इंडिविजुअली हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है। Right, sir. That's very enlightening, actually. Right, sir. So our next question is कि आजकल मार्केट में चीपर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं फॉर अ सर्टेन मेडिसिन। फॉर एग्जांपल जैसे टाडालापिल है is also available as Tadat by another brand, but with a different price. That's one example. So, Yeah. is it safe to actually, change medicine? Because usually जब हम online order करते हैं, so they give you various alternatives. So, can we rely on them? आई वुड से कि काफी सो ब्रांड्स हैं बेसिकली, ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक मेडिसिन भी मैं इसमें एक बोलना चाहूंगा। जनरली जेनरिक मेडिसिन जो है वो चीपर मेडिसिन होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव है
उसमें इन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उसमें काफ़ी मेडिसिन की कॉस्ट कम हो गई है। तो बट मैं यही कहूँगा कि कुछ पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन सूट करती हैं। इवन आप ब्रांडेड मेडिसिन में देखोगे कुछ पेशेंट्स को फॉर एग्जांपल एक ब्रांड की मेडिसिन सूट नहीं करती तो काफ़ी बार हमें चेंज करना पड़ता है ब्रांड। तो उससे कई बार उसका असर आता है, कई बार जेनरिक मेडिसिन का असर आता है। तो वो अगेन इंडिविजुअल वेरिएशन है कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है बॉडी पे मेडिसिन का। तो वो भी अगेन आपको खाने के बाद मेडिसिन पेशेंट के कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उससे ही जज होता है। तो प्राइस अगेन इज नॉट अ क्राइटेरिया। काफ़ी मेडिसिन ऐसे भी हैं जिनका रेट बहुत कम है और वो भी बहुत इफेक्टिव हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जिनका रेट बहुत हाई है बट वो पेशेंट को इफेक्ट नहीं ला रही। तो बेसिकली क्या मैटर करता है कि पेशेंट को मेडिसिन का इफेक्ट आना चाहिए, चाहे वो उसका रेट कम है चाहे ज़्यादा है, वो मैटर नहीं करता है। Right, sir. Right. Because a lot of patients get confused जब भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो we see the price difference and we try to pick and choose. Let's try Yeah. this medicine. Yeah. The last question for today's session is: are injectables better and safer than oral medication in managing scleroderma? And what are the advantages, disadvantages of both? अगेन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इंडिया में जो मैंने जनरली नोट किया है, पेशेंट्स आर अफ्रेड ऑफ इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल मेडिसिन से एक खौफ है पेशेंट के मन में, एक डर है कि अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत स्ट्रांग मेडिसिन है, अगर हमने ये यूज कर लिया और ये फेल हो गई तो हम जो खाने वाली ओरल टेबलेट्स हैं उसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा हमारी बॉडी पे। ये जनरली पेशेंट का परसिवेंस या पेशेंट के थॉट प्रोसेस जो रहता है, जनरली ये रहता है। बट अगेन इसमें मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो किसी पेशेंट को लिवर का कैंसर है और लिवर के में गांठ है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल रहा है। तो अगर हम सर्जरी करें और उस लिवर जहाँ से वो फैल रहा है बॉडी में उसको हम निकाल दें तो वहां से वो बॉडी में फैलना बंद हो जाएगा और फिर जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो और ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो काफी बार क्या होता है कि ओरल मेडिसिन से हमारी बीमारी, पेशेंट की बीमारी कंट्रोल नहीं होती है, तो उसमें हम इंजेक्टेबल मेडिसिन एडवाइस करते हैं, या फिर पेशेंट्स को ओरल मेडिसिन टॉलरेट नहीं हो रही है, जैसे मैंने बताया एमएमएफ देने के बाद पेशेंट्स को नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, आपने सारे ब्रांड ट्राई कर लिए, सोडियम सॉल्ट भी ट्राई कर ली, ऑल ऑल्टरनेटिव ट्राई कर लिए, उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो हम उसमें इंजेक्टेबल मेडिसिन देते हैं। या फिर बीमारी बहुत एग्रेसिव है, हमें पता है इस पे इंजेक्टेबल मेडिसिन का ही असर आएगा, ओरल मेडिसिन का असर टाइम लेगा जब तक पेशेंट को बहुत ज्यादा खतरा बन जाता है कि किडनी खराब हो जाएगी या लिवर खराब हो जाएगा या लंग खराब हो जाएंगे, तो तब ये इंजेक्टेबल मेडिसिन एडवाइस होते हैं। तो रादर आई वुड से कि इनके यूज के बाद, इंजेक्टेबल मेडिसिन यूज के बाद जो ओरल मेडिसिन हमें शिफ्ट करते हैं बाद में पेशेंट को, वो और इफेक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि बीमारी जो बहुत एक्टिव थी वो कंट्रोल में आ जाती है, तो उस टाइम ओरल मेडिसिन भी बहुत अच्छा असर दिखाती हैं शरीर पर। रही बात साइड इफेक्ट्स की, साइड इफेक्ट्स इंजेक्टेबल मेडिसिन में खाली एक खतरा ज्यादा होता है, वो होता है इन्फ्यूजन रिएक्शन का, क्योंकि वो ड्रिप से देते हैं, कोई भी मेडिसिन जो ड्रिप से जाएगी उसमें इन्फ्यूजन रिएक्शन का खतरा होता है। इन्फ्यूजन रिएक्शन जनरली होता भी है तो बहुत माइल्ड होता है, पेशेंट को कि शिवरिंग वगैरह होती है, उसमें ठंड लगती है, उस टाइम हम दवाई चढ़ाने का रेट कम कर देते हैं, या फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, या उससे पहले हम और कुछ मेडिसिन चढ़ा देते हैं जिससे कि वो इन्फ्यूजन रिएक्शन ना हो। तो जनरली एक यही खतरा ज्यादा होता है, अदरवाइज सारी इंजेक्टेबल मेडिसिन या ओरल मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट वन और टू जो कि मेडिसिन स्पेसिफिक होता है। Right, sir. रादर रादर काफी बार ऐसा होता है कि
इंजेक्टेबल मेडिसिन यूज करके पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन बच जाता है, पेशेंट का जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी है वो बच जाता है। अगर लॉन्ग रन में देखें, काफी बार मैंने ये नोट किया है कि अगर हम उन कुछ मेडिसिन जो इंजेक्टेबल मेडिसिन को जब हमें अर्ली यूज करना पड़े और अगर हम उसको कर लेते हैं तो पेशेंट का आगे का जो सारा खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है, उसके बार बार हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बच जाता है और डेफिनेटली बीमारी अंडर कंट्रोल आ जाती है और इवन डेथ का खतरा भी बच जाता है। आई गेस ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर हो जाता है कि कॉस्ट कितनी आएगी, बिकॉज वी हाँ टेंड टू लुक एट द इमीडिएट कॉस्ट कि आज जी। मेरे को ट्रीटमेंट का इतना खर्चा करना पड़ रहा है, बट वी टेंड टू फॉरगेट कि मैं लॉन्ग रन में कितना खर्चा हो रहा है उसको कैलकुलेट करो, तो देन इट मेक्स अ वाइज डिसीजन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स और द बजट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेशेंट। हाँ जी। अगर मैं आपके फोरम से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जनरली इंडिया में पेशेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। मैनी ऑफ द मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। आई वुड रिकमेंड कि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी बीमारियों का खर्चा जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस जिस कंपनी से कराया है वो खर्चा कंपनी उठाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का आजकल के ज़माने में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और सब पेशेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। Right, sir. That's a very strong point. And in fact, we too try to recommend to all our patients जो भी हमारे फोरम में आते हैं. So, thank you so much for this enlightening session today. हमारे आई गेस पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो जो प्रॉब्लम्स या जो जो चैलेंजेस हमने फेस किए और जो कॉमन क्वेश्चंस थे, आई गेस वो एक सेशन के अंदर ही क्लियर आउट हो गए आज सारे के सारे. So, thank you थैंक so यू। much for your time today, and we hope to meet you again, answering some of our other questions, busting some of our other myths, sir. Definitely. I'm happy to help whenever anyone is in need, can contact me. Thank you. Namaste. Right, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Have a wonderful day. Thank you. Thank you.